Good morning, student. Today we start a study related to lesson 1 of class 7. Lesson 1 food, bhojan. Some primary important terms related to food on the basis of engulfing food material. Good answer. On the basis of engulfing food material, first of all, different organisms divided into different categories. Likewise, autotrophs, heterotrophs, saprophytes, parasites, insectivorous, symbionts, symbiosis. One by one, define the different terms related to engulfing or prepared food material. ये जो पहला चैप्टर है आपका फूड या भोजन, इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हम आपको बताए हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, सिम्बियोट्स एंड सिम्बायोसिस. Autotrophs. Autotrophs are those which have the ability to prepare their own food. Food prepared with the help of simple organic substance. The autotrophs are mostly green plants. The green plants have the ability to prepare food material and store inside the leaf and transport it with the help of phloem fibers. जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमने डिफाइन किया ऑटोट्रॉप्स. ये ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए उसका उपयोग करते हैं. रेस्ट स्टोरेड फूड मटेरियल जो है अदर ऑर्गेनिज्म के काम में आता है. Heterotrophs are those organisms that cannot make their own food. Or in other words, we can say heterotrophs are those which have not the ability to prepare their own food. They depend on green plants or autotrophs. All the heterotrophs obtain their food from autotrophs. Then another term, saprophytes. Saprophytes are those which have obtained their food from dead and decaying organic matter. saprophytes वे हैं जो अपना न्यूट्रिशन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं. पैराफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which have the ability to obtain their food from the victim or parasite body. The victim or parasite are host or plant or animals. Next, insectivorous. The insectivorous green plants which make their own food but depend on insect for nitrogenous food. Some plant grown in that particular soil, the soil quality in which the concentration of nitrogen are very less, then
This type of plant retain the concentration of nitrogenous substance with the help of the engulfing insects. Then this type of plant are also known as insectivorous plant. कहने का मतलब आपको हमने ऊपर बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ऐसे भूभाग में, ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, और वो अपने नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए, नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, और इंसेक्ट को खा करके उनको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके उनसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिम्बियोन्ट्स। Two plants which live together as part of the same plant and mutually help each other. Symbionts are those plants which have benefited to each other. Some material provided by one plant and prepared material provided by one plant to another plant. कहने का मतलब दो पौधे इसमें ऐसे आपस में सहजीविता दर्शाते हैं जिससे एक दूसरे को कुछ देता है तो दूसरा पहले वाले को उसके बदले में कुछ देता है, और इस तरह से जीवन जीने की कला को हम सिम्बियोसिस कहते हैं, जो म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं एक दूसरे को। इन केस ऑफ heterotrophs, most of the food material engulfed in insoluble form. The various components of our food are carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, rauge and water etc. जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, जितना भी हम खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं उसमें से अधिकतर जो है खाद्य पदार्थ हार्ड फॉर्म में होता है जिसको चबाना पड़ता है। सॉल्युबल फॉर्म में सारे फूड मटेरियल हम इनगल्फ नहीं करते हैं, और जो हमारे फूड का मेन इंग्रेडिएंट है उसमें मेन कंपोनेंट जो है वह कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, रॉगी है, वाटर है। यही जो है मेन कंपोनेंट हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ में मिलते हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक हैं। फूड प्रोवाइडेड अस एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ एंड हेल्प अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ फूड? फूड हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। जो हम रोज़ की दिनचर्या करते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और ये सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से, फूड से। एंड फूड आर आल्सो हेल्पफुल इन और बॉडी ग्रोथ एंड आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। शारीरिक ग्रोथ में भोजन का उपयोग है, रिप्रोडक्शन में उपयोग है। बट different animal take different kind of food. Green plants make their own food by a process called photosynthesis. लेकिन अलग अलग तरह के एनिमल जो है अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसी तरह जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन एक स्पेशल प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसे स्पेशल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। Humans and animals get their food from plants or from smaller animals. मनुष्य
और अदर जीव जो है अपना भोजन या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे छोटे जीवों से। दिस डिपेंड्स फॉर फूड ऑन वन अनदर एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन आर डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर। और इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे। In next section we will discuss the process of nutrition. Thank you for watching video.